So good morning to everyone, and this is Dr. Dilbaj. We were doing binomial theorem, that is the topic of applied mathematics 1 of diploma first year. So student, we were doing binomial theorem, as you know that, and we have discussed many basic concepts, basic formula of binomial theorem for positive index. After that, we have discussed the general term formula, how you will find the term of a binomial theorem. And then after that, we have discussed how you will find the coefficient of any term. And after that, we have discussed middle term concept. So today I am going to discuss a very important question, very important question. It is basically, see, this is the question, very important question, very important. The second, third and fourth term of this binomial is 240, 720 and 1080 respectively, and we have to find out the value of x, a and n. Student, you know that the general formula of binomial is tr plus 1 is equal to in this in in the expansion x plus a raised to power n. Tr plus 1 is ncr x raised to power n minus r a raised to power r. So you are they are saying second term. Second term means t2. T2 means t1 plus 1. R is 1. So you will get n is n nc1, correct, x raised to power n minus 1 and a raised to power 1. This is the value of t2, and this is equal to, and you know that nc1 n also, nc1 is equal to nc1 is equal to n. So you have n x raised to power n minus 1 into a, and this value of second term value is 240. So this is 240. You can take this is equation number 1, correct. So they are saying third term. थर्ड टर्म मीन्स, तीसरी टर्म मीन्स, इसको लिख सकते हो आप 2 plus 1. So means r is 2. Here r is 2. ncr nc2 x raised पर n minus 2 and a raised to power 2. और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो nc2 की वैल्यू है, nc2 की वैल्यू दैट इज n इंटू n माइनस 1, शॉर्टकट में 2 इंटू 1, ठीक है जी. सो दिस विल बिकम nc2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 पॉइंट 2 और x रेज्ड पर n माइनस 2 एंड a रेज्ड टू पावर 2, एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड थर्ड टर्म इज 720. सो दिस इज इक्वल टू 720, इक्वेशन नंबर 2. So we have the value of second third term also. Now they are saying fourth term t4 is equal to t3 plus 1, r is 3. So nc3 x raised to power n minus 3 a raised to power 3, and you know that nc3 is equal to n into n minus 1 and n minus 2 and 3 to 1. 3 to 1 means 6. Okay, so you will get n into n minus 1 into n minus 2 upon 6 x raised to power n minus 3 a raised to power 3, and this is equal to, it is given that the fourth term is 1080, equation number third. So student, we will take the help of these three equations and we will try to find out the value of x, n and a. ये तीन इक्वेशंस की हेल्प लेंगे और जिससे हम इक्वेशन ये सारी वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो देखो जरा, now what I am going to do here,
Now how we will find the value of, see, I am dividing 2 by 1, dividing two equation by 1 means 2 in the न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1। तो आप इसको ऊपर रखोगे, इसको नीचे रखोगे, बड़े ध्यान से देखना जरा। 2 बाई 1, 2 का लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड 2 का है n इंटू एन माइनस वन बाई 2, और ये x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज n x रेज टू पावर n माइनस 1 और a रेज टू पावर 1, और इधर हमारे पास आ जाएगा जी 720 एंड यू विल गेट 240। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। बेटा पहले तो ये 240 से कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, दिस इज डन। ये एक a है, यहाँ 2a है, ये कैंसिल हो गया। अब ये एक n है, ये भी एक कैंसिल हो गया। अब बेटा जी बड़े ध्यान से देखना जरा, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ये मेरे पास एक तो n माइनस वन बाई 2 आएगा, ये रह गया। अब ये जो x की पावर n माइनस 2 है, ये छोटी है, एक कम है, यहाँ एक ज़्यादा है, यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे एक ज़्यादा है। तो इसको जब कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे एक रह जाएगा, एक x रह जाएगा नीचे, क्योंकि n माइनस 2 में एक कम है x है, यहाँ एक ज़्यादा है। तो दैट यहाँ पे ऊपर a रह गया, यहाँ पे x रह गया, इज इक्वल टू 3। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ आई एम डिवाइडिंग 3 बाई 2, डिवाइडिंग 3 बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड 3 की आपके पास ये है, और लेफ्ट हैंड साइड 2 की आपके पास ये है। तो देखो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 3 के n इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 पॉन 6 x रेज पर n माइनस 3 a रेज टू पावर 3 अपॉन, देखो बेटा जी ध्यान से, और जो लेफ्ट हैंड साइड 2 की है वो है n इंटू एन माइनस वन एक्स एन माइनस 2 ए स्केयर अपॉन 2, और राइट हैंड साइड ऑफ 3 इज 1080 and left hand side of 2 is 720, correct? So now what I'm going to do, this 0 is cancelled with 0, so 36 that will be cancelled with 2 and 3. 36 is the cancelled, 36 into 2 72, 36 into 3 is 108, this is 3 by 2. Now this a square is cancelled with 3a, only one a is left in the numerator. This n is cancelled, n minus 1 is cancelled, 2 is cancelled, here is 3, correct? Now here n minus 3 and n minus 2, here 1x is less in the numerator, here 1x is more, so you have x only. So what you will get here, n minus 2 is left, n minus 2 upon 3 into a upon x is equal to 3 by 2, correct? This is the equation number 5. Student, now what you will do here, equation number 4 and 5 का one thing is there, a by x and a by x is common, तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए, जहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a by x की वैल्यू, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर लेते हैं, करेक्ट? जहाँ आप जैसे मर्जी कर लीजिए, आपको अल्टीमेटली डिवाइडिंग 4 बाई 5, 4 बाई 5 मीन्स 4 को आप ऊपर रखिए न्यूमिनेटर में, ये 4 है आपके पास, देखो दिस इज 4 n माइनस 1 बाई 2 और a माइन ओवर x, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5 की n माइनस 2 अपॉन 3 और a बाई एक्स इज इक्वल टू, वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 बाई 2 है। बेटा a बाई एक्स से a बाई कैंसल, करेक्ट?
ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा। नाउ व्हाट यू विल गेट हेयर, ये 3 आपका न्यूमिनेटर में चला गया, ये n-1/2 इंटू 3 इंटू n-2 इज इक्वल टू, ये 2 चला गया ऊपर ऐसे, ये 1/2 ऊपर चला गया। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज n-1/2 एंड 3 ऊपर चला गया। नाउ n-2 हियर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2 शिफ्ट होकर ऊपर चला गया। So what you are getting here, you will cross multiply, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 n-1, 3 n-1, ये 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर चला गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, n-2। सॉल्यूशन करते हैं बेटा जी, 3n-3, ये 4n-8, तो ये 3n इधर आके -3n हो गया, तो 4n-3n, और ये -8 उधर जाके +8 हो गया, तो 8-3, यहाँ आ गया n इज इक्वल टू आ गया जी 5, ये n इज इक्वल टू 5 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। नाउ स्टूडेंट, नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आ चुकी है। टू फाइंड a एंड x आई विल यूज द इक्वेशन नंबर 1 अगेन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसके अंदर हम n की वैल्यू पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब अगर n की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ गया 5 करेक्ट, और यहाँ पे 5 - 1 4, तो दिस विल बिकम, so therefore equation 1 becomes, बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि n(x⁻n-1) into a is 240, so this will become, n की वैल्यू आ गई 5, x⁻5 - 1 4, a it is 240, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ से बेटा बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 240 अपॉन x⁻4 into 5, ये 5 240 से कैंसिल हो जाता है जब आप 240 को है ना, तो दिस व्हेन यू विल डिवाइड विद दिस इज 48, तो हमारे पास a की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आई है 48 अपॉन x⁻4, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लेता हूँ। now from equation number 2, so therefore from equation 2, बेटा आपके पास 2 इक्वेशन क्या थी, n इंटू n-2 करेक्ट अपॉन 2 x⁻n-2 और a⁻2 इज इक्वल टू 720, तो इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान देखना, ये n की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 3 अपॉन 2 x⁻5 - 2 3 a⁻2 करेक्ट। तो बेटा ध्यान से देखो 720, सो स्टूडेंट व्हाट यू विल गेट हेयर, तो हमारे पास a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेटा बड़े ध्यान से देखना, 720, ये 2 बेटा ऊपर चला गया, 5 × 3 50 नीचे आ गया, और ये हमारे पास x⁻3 ये रह गया हमारे पास, करेक्ट। अब देखो हमारे पास एक तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 था, ये आएगा जी n-4, ये आएगा 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 10 आ गया, ये हमारे पास 5 × 2 10, यू विल गेट 10 करेक्ट। सो 10 से ये 0 गया, यू आर गेटिंग a² is equal to 72 upon a⁻3, so x⁻3, so this is the equation number 7. Now how I am getting equation number 7, if you have a doubt, so therefore from 6 and 7, ध्यान से देखना, 6 में a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 48/x⁻4, और 7 में ये जो a की वैल्यू है, हम ऐसा करते हैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं a की जगह पे, तो दैट विल बी 48
अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 होल स्केयर, ये होल स्केयर 2 है इसकी पावर, तो दिस इज 72 एक्स रेज टू पावर 3। बेटा बड़े ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इट। नाउ व्हाट यू विल गेट, ये मेरे पास आ गया जी 48 इंटू 48 और एक्स रेज टू पावर 8, क्योंकि 4 इंटू 2 8। मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी कैंसल्ड। एक्स रेज टू पावर 3, बेटा एक्स रेज टू पावर 3 कैंसिल हो गया, एक्स रेज टू पावर 8 से, तो 5 5 रह गए। ये ऊपर गया न्यूमिनेटर में, एक्स रेज टू पावर 5, बेटा ध्यान से देखना, 72 हमारे पास, ये 48 ऊपर है, 48 एंड यू विल गेट 72 इन द डिनोमिनेटर। नाउ वी विल ट्राई टू कैंसिल इट। अब ध्यान से देखना जरा, तो जो 48 है ये 24 के बाद 24 के ऊपर 2 पे गया, ये आ गया मेरे पास 3, ठीक है जी। ये इस पे गया, ये आ गया 16, 3 पे 16, तो यू आर गेटिंग 2 इंटू 16। बेटा जो 16 होता है 2 रेज टू पावर 4 होता है, तो दिस इज 2 रेज टू पावर 5, सो दिस इंप्लाइज x रेज टू पावर 5 एंड 2 रेज टू पावर 5, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 2 आ गई। लो जी, x की वैल्यू निकाल ली। नाउ x की वैल्यू आ गई चुकी है, n की वैल्यू आ चुकी है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन में हमने a की वैल्यू निकाली थी x की फॉर्म में, ये देखिए। नाउ a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 48 अपॉन एक्स रेज टू पावर कितना था, 4, सो 48 एक्स रेज टू पावर 4 मीन्स 2 रेज टू पावर 4, 48 बेटा जी 48 2 रेज टू पावर 4 है 16, ये कैंसिल होके 3 आ गया, तो a की वैल्यू बेटा 3 आ गई। सो देयरफॉर x is equal to 2, a is equal to 3 and n is equal to 5. This is the final answer of this question. Very important question.